lesson again from okay. So when we talk about the hierarchy, beta, okay, what is the basic structural and function? What is the basic structural and functional unit of life? Tell me, anyone. What is the basic structural and functional unit of life? Yes. Cell. Cell. Very good. So group of cell will form what? Group of cells जब इकट्ठा होंगे तो क्या बनाएंगे? Tissue. टिश्यूज. फिर ग्रुप ऑफ टिश्यूज इकट्ठा होके क्या बनाएंगे? ऑर्गन विल फॉर्म व्हाट? Organ System. Very good, beta. Very good. An organ system will work in coordination to form the organism. है ना? This is what is the hierarchy of the life. When we talk about tissue, आपको सेल के बारे में भी पढ़ना होगा, but in a different lesson, that is cell organization. आपको एक लेसन है 11th स्टैंडर्ड में सेल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर आप सेल के बारे में डिटेल में पढ़ोगे, सेल के सारे ऑर्गेनल्स पढ़ोगे, कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के अंदर, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं हमारे सेल के अंदर. अब ये सारे सेल्स इकट्ठा हो रहे हैं टू परफॉर्म अ सिंगल फंक्शन और मे बी अदर फंक्शन. ठीक है, there can be same type of cell. Please mute, all of you, mute your device. If you want to ask something, you then only you unmute yourself. Your voice is not audible. Yes, children, am I audible now? Yes, Yes. miss. Yes. Okay. Okay. So tissues. So I was telling that कि एनिमल टिश्यूज एंड प्लांट टिश्यूज में फर्क होता है. एनिमल के टिश्यूज अलग होते हैं और प्लांट के टिश्यूज अलग होते हैं. ठीक है. So let us see this part. Definition of tissue. I hope all of you are having notebook with you all to note down the important things. Huh? Please all of you note down the important things in your notebook also. Don't just hear. सिर्फ सुनना नहीं है आपको. To write down also. So what is a tissue? It is a group of cell having same embryonic origin, structure and function is called as a tissue. एक मार्क आपको पूछा जा सकता है. ठीक है. Again, I think so there is some network issue in my side, beta. I will off the camera because it is showing me
Again and again, internet unstable. Okay, so it is a group of cells having same embryonic origin, structure, and the function. Various tissues combine together in an orderly manner to form large functional unit, which is called as the organ. Organ will combine to form the organ system. Yes, an organ system will form the body. Yes, so cell will form tissues, tissues will form organ, organ will form organ system, and organ system will form body. So all of you please note down, those who are new children, please note down this part, this hierarchy. All of you note down this hierarchy, definition of tissue, 1 mark question for your exam. 1 mark question for your exam. Noted? Have you all noted? Yes, Miss. Yes, miss. Okay, so again the definition of tissues, but there are something extra included in that so that I can explain you in much more detailed part. Tissue is defined as a collection of cell. No doubt it's a collection of cell together with an extracellular secretion. Now what is that? Extracellular secretion का मतलब क्या है? Now you imagine my 4 fingers as the cell. This is first cell, second cell, third and fourth cell. अगर ये सेल एक साथ अभी अलग अलग सेल से एक साथ इकट्ठा हो गए तो टिश्यू बन गए. अब हर फिंगर्स के बीच में यू कैन सी स्पेस इज बीन प्रेजेंट. दैट इज कॉल्ड एज द एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस. और उस एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस के अंदर सिक्रीशन होता है जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं. प्लीज नोट डाउन दिस टर्म क्योंकि इस लेसन में बार बार ये वर्ड आएगा मैट्रिक्स. MATRIX. मैट्रिक्स का मतलब होता है सेल्स के बीच में जब सेल्स इकट्ठा होकर टिश्यू बनते हैं तो हर एक सेल के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं. कभी कभी ये फ्लूइड हो सकता है, कभी कभी ये जेल के फॉर्म में हो सकता है, कभी कभी हार्ड फॉर्म में हो सकता है. अलग अलग फॉर्म होता है इसका, पर मैट्रिक्स का मतलब आप में आया एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस और द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड is called as the matrix to perform one or more particular function. टिश्यू के अंदर एक टाइप के भी सेल सकते हैं या फिर अलग अलग सेल्स हैं. चलिए तो बहुत सारे एग्जांपल्स है जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू हो गया, ठीक है. पर अलग अलग सेल्स के लिए मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगी. अ सिंपल एग्जांपल इज ऑफ ब्लड. ब्लड, हमारे ब्लड में आपने सुना होगा कि आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होते हैं. तो ये 3 अलग अलग टाइप के सेल्स हैं, है कि नहीं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये 3 अलग अलग टाइप के सेल्स हैं पर सब ब्लड में प्रेजेंट है, एक साथ प्रेजेंट है, एक साथ काम कर रहे हैं. तो ब्लड भी क्या है? ब्लड भी एक टाइप का टिश्यू है जिसमें 3 अलग अलग टाइप के सेल्स है बट दे आर वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन. तो जरूरी नहीं है कि टिश्यू में हमेशा एक ही टाइप के सेल्स हो, टिश्यू में अलग अलग टाइप के भी सेल्स हो सकते हैं, ठीक है. नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर लेसन फॉर एनिमल टिश्यू, अगर हम एनिमल टिश्यू की जब बात करते हैं तो एनिमल के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये 4 टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट हैं. एनिमल हैव दिस 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज only. एपिथेलियल टिश्यू जिसके आपको और टाइप्स पढ़ने हैं. कनेक्टिव टिश्यूज, अगेन यू विल बी लर्निंग मोर टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. मस्कुलर के भी टाइप्स पढ़ने हैं एंड नर्वस टिश्यू जिसको हम नर्व टिश्यू भी कह सकते हैं. सो ऑल ऑफ यू नोट डाउन, लिखो, हेडिंग लिखो, एनिमल टिश्यू. इन योर नोटबुक राइट डाउन एनिमल टिश्यू हेडिंग. राइट डाउन हेडिंग एज एनिमल टिश्यू और उसको 4 ब्रांचिंग करो. राइट डाउन द नेम एज epithelial tissue,
स्पेलिंग देख लो स्क्रीन पे से। कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू या फिर मस्कुलर टिश्यू भी बोल सकते हो, एंड नर्व टिश्यू या फिर नर्वस टिश्यू भी बोल सकते हो। सो प्लीज नोट डाउन। हो जाएगा लिख के तो प्लीज लेट मी नो। हाँ बेटा, मिस हो गया। हो गया? अच्छा, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आप लिखोगे, अपने बुक में लिखोगे टाइप्स ऑफ सेल। राइट डाउन द हेडिंग, टाइप्स ऑफ सेल। लिखो सब लोग अपने अपने नोटबुक में, टाइप्स ऑफ सेल। उसको दो ब्रांचिंग करो, दो पार्ट में डिवाइड करो उसे। टाइप्स ऑफ सेल हेडिंग को दो पार्ट में डिवाइड करो। एक साइड लिखो सोमैटिक सेल, आप स्क्रीन पे देख सकते हो सोमैटिक का स्पेलिंग, और दूसरे साइड लिखोगे आप जर्म सेल या फिर रिप्रोडक्टिव सेल। सो एट वन साइड राइट डाउन सोमैटिक सेल, और दूसरे साइड क्या लिखोगे, जर्म सेल या फिर रिप्रोडक्टिव सेल। हो गया मिस। ओके ना, सोमैटिक का मतलब क्या होता है? सोमा का मतलब होता है बॉडी। बायो में कहीं पे भी अगर वर्ड सोमा है दैट मीन्स बॉडी। ठीक है, तो सोमैटिक सेल्स का मतलब क्या होता है? बॉडी सेल्स। मतलब हमारे लिवर में, हमारे हार्ट में, हमारे किडनी में, हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे हाथ में, हमारे पैर में, हर जगह जो सेल्स प्रेजेंट है जिससे कि टिश्यूज बन रहे हैं, उसे हम कॉमनली बोलेंगे सोमैटिक सेल्स या फिर सोमैटिक टिश्यूज भी बोल सकते हो आप। समझ में आया? तो जितने भी हमारे बॉडी में सेल्स हैं, जो हमारे लिवर, किडनी, ब्रेन, सब जगह जो हैं, उसे हम कॉमनली कहेंगे सोमैटिक सेल्स। ठीक है, फिर रिप्रोडक्टिव सेल्स या फिर जर्म सेल्स क्या होते हैं? ऐसे सेल्स जो सिर्फ और सिर्फ हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्रेजेंट हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या हैं? मेल के अंदर होता है टेस्टिस और फीमेल के अंदर होता है ओवरी। टेस्टिस के अंदर क्या बनता है? स्पर्म तैयार होता है, और ओवरी के अंदर क्या तैयार होता है? एग, या फिर उसको हम ओवा भी बोलते हैं। एग को ओवा भी कहा जाता है, OVA। यस, सो स्पर्म और एग, इसे हम जर्म सेल्स कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, जबकि सोमैटिक सेल्स में फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, डिप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड मतलब फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम। जबकि जर्म सेल्स जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अंडरस्टूड दिस मच ऑल ऑफ यू? यस मिस। यस मिस। ओके, सो जर्म सेल्स में आप एग्जांपल लिख सकते हो स्पर्म एंड एग, डाउन इन ब्रैकेट हैप्लॉइड। और सोमैटिक सेल्स में लिख सकते बॉडी सेल्स, इन ब्रैकेट यू कैन राइट डाउन डिप्लॉइड। Next, as in this lesson, we are going to learn about the tissue. Just understand what is the study of tissue called as. So, study of tissue with respect to its structure, arrangement is called as histology. 1 mark question for your exam. 1 mark question for your exam, histology. Study of tissue with respect to the structure and arrangement is called as histology.
Then who has discovered about the tissues? The name of the scientist is Marie Francois Xavier, and therefore he is called as a father of histology. Father of histology. So there are 4 different types of tissues present in animals that we have already noted: epithelial, connective, muscular, and the nervous. Have you noted histology and name of the scientist? Yes, ma'am. Yes, miss. So the 4 different types of tissues you learn. Epithelial tissue you are going to learn. You are going to learn connective tissue. You can see the diagram. Muscular tissue and the nervous tissue. So let us first begin with the epithelial tissue. पहले हम जनरल पॉइंट्स पढ़ेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू कैसा दिखता है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, और फिर हम उसके टाइप्स पढ़ेंगे. ठीक है. तो एपिथेलियल का मतलब क्या होता है? एपी का मतलब बायो में होता है ऊपर, अबव, एंड थीलियम का मतलब होता है लेयर ऑफ सेल्स. तो जो ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, जो हमारे ऑर्गन्स में, जो हमारे बॉडी में ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, ऐसे लेयर ऑफ सेल्स को हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं. तो एपिथेलियल टिश्यू कहां पर प्रेजेंट होता है? हर एक ऑर्गन के ऊपर और अंदर की तरफ ये कवरिंग बनाता है. जैसे समझो फॉर एग्जांपल ये कोई ऑर्गन है, तो इसके ऊपर के हिस्से में एपिथेलियल टिश्यू होगा और उसके अंदर के कवरिंग में भी एपिथेलियल टिश्यू होगा. ठीक है. एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स है, अब ये टिश्यू है तो सेल से बना है, इसके जो सेल्स होते हैं वो इतने पास में प्रेजेंट है, इतने पास में प्रेजेंट है कि बीच में जो मैट्रिक्स है वो बहुत ही कम है या फिर ना के बराबर है. समझ में आया? आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो कि कितने पास में सेल्स प्रेजेंट है. इतने पास में इतने चिपक के सेल्स प्रेजेंट है कि 2 सेल के बीच में बहुत कम या फिर नहीं के बराबर मैट्रिक्स होता है. तो उसे हम क्या कह रहे हैं? इंटर सेल्यूलर मैट्रिक्स. इंटर का मतलब होता है बायो में इन बिटवीन. कहीं पे भी वर्ड अगर इंटर है उसका मतलब होता है इन बिटवीन. तो इन बिटवीन सेल मैट्रिक्स विल बी आइदर वेरी लिटिल और नो मैट्रिक्स. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू. आप कोई भी एपिथेलियल टिश्यू ले लो, हर एक एपिथेलियल टिश्यू के नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन जरूर प्रेजेंट होता है, जरूर. All epithelial tissue are resting on a non-cellular basement membrane. So this is an important demarcation of this epithelial tissue. इस टिश्यू के सेल्स जो होते हैं उनका कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं होता. ऐसा नहीं कि सर्कल होंगे, ऐसा नहीं कि हेक्सागोन होंगे, ऐसा नहीं कि क्यूब शेप के होंगे, कोई भी शेप के हो सकते हैं. इसीलिए हम इसे कह रहे हैं पॉलीगोनल. पॉलीगोनल का मतलब है कोई भी शेप के हो सकते हैं, क्यूब शेप के हो सकते हैं, लंबे टॉल कॉलम शेप के हो सकते हैं. ठीक है. बट कोई भी शेप होने दो, पर न्यूक्लियस एक ही होता है सेल के अंदर, एक ही सिंगल न्यूक्लियस होता है. फिर या तो वो सेंटर में हो या तो सेल के बेस में हो. दैट डिपेंड्स अपॉन द सेल. ऐसा टाइप के जो टिश्यूज होते हैं वो अवैस्कुलर होते हैं. अवैस्कुलर का मतलब क्या होता है? पहले मैं आपको वैस्कुलर बताऊंगी, फिर अवैस्कुलर का मतलब आप समझ जाओगे. वैस्कुलर का मतलब होता है रिच इन ब्लड सप्लाई, रिच इन ब्लड सप्लाई. तो अवैस्कुलर मतलब नो ब्लड सप्लाई. ठीक है, नो ब्लड सप्लाई. सो एपिथेलियल टिश्यू में अगर ब्लड सप्लाई नहीं है तो आप मुझे पूछोगे कि मैं क्या है. तो आंसर टू योर क्वेश्चन इज एपिथेलियल टिश्यू के नीचे ही कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिससे कि उसे सारा न्यूट्रिशन मिल पाता है. Next, very important point about the epithelial tissue is it is having a very good capacity of regeneration. वापस से generate हो सकता है.
जैसे बचपन में आपको कई बार चोट लगी होगी, आप गिर गए होगे, कट गए होगे, जल गए होगे, फिर वो स्किन वहां का ठीक हो गया होगा। कैसे ठीक हो गया? तो वैसा का वैसे ही है क्या वुंड? नहीं, तो ठीक हो गया ना, हील हो गया। क्यों हील हो गया? क्योंकि जो हमारा स्किन है ना, वो एक टाइप का एपिथेलियल टिश्यू है, और इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो वापस से रीजनरेट हो सकता है। अंडरस्टूड पॉइंट्स? Ma'am, I have a doubt. Why that matrix? What matrix का क्या काम होता है? What does it? दो Like how सेल does के it work? बीच Or में दो सेल के बीच में फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, दैट इज द यूज ऑफ मैट्रिक्स। and ma'am, ठीक है, what you said about that vascular? I just not heard it properly. You said the definition of it. वैस्कुलर का मतलब होता है बेटा रिच इन ब्लड सप्लाई, तो अवैस्कुलर का मतलब है विदाउट ब्लड सप्लाई। अंडरस्टूड उत्कर्ष? उत्कर्षा, Yes, ma'am. आई थिंक सो इट्स योर नेम ना, उत्कर्षा। Yeah. It's right. अंडरस्टूड बेटा? Yes, ma'am. So you can note down the points if you want, or either you can take a screenshot of this particular page. Done? Yes, ma'am. Miss. Okay, so you all please let me know, but I was waiting for you all only. Okay, कोई भी epithelial tissue का काम क्या होता है? तो it helps in protection, it helps in absorption of some material, it helps in transport, filtration and secretion. ठीक है? Now all of you write down in your notebook types of epithelial tissue. Write down in your notebook types of epithelial tissue. Put a heading, types of epithelial tissue. लिखा? उसको दो पार्ट में डिवाइड करो आप लोग. Divide into two parts. At one side write down simple epithelium and दूसरे side लिखो compound epithelium. Simple epithelium, compound epithelium. और फिर ये जो पॉइंट्स लिखे हैं ये लिख लो आप. सिंपल एपिथेलियम के नीचे लिखो इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, सो इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. एक ही लेयर ऑफ सेल से बना है तो सिंपल, और लेयर के ऊपर लेयर है तो कंपाउंड एपिथेलियम, और जो सबसे नीचे वाला लेयर रहेगा वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रहेगा. और यहाँ पे क्योंकि ये सिंगल लेयर ऑफ सेल है तो सारे सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन पे हैं. यहाँ पे हमने क्यों स्पेसिफाई किया? क्योंकि यहाँ पे लेयर्स ऑफ सेल है इसीलिए. तो जो सबसे नीचे वाला सेल होगा वही बेसमेंट मेम्ब्रेन पे होता है. Please note down all of you, and if you are done please let me know, but I'm waiting for your reply. Miss completed. Yes, complete. Now अब आप क्या करोगे बच्चा? जैसे जैसे मैं बता रही हूँ ना वैसे वैसे आप लिखते जाओ. Again put a heading as simple epithelium. Next line में लिखो simple epithelium.
Otherwise, write down types of simple epithelium. Write down types of simple epithelium. Next line में write down types of simple epithelium. ठीक है, अभी नाम लिखते जाओ, हेडिंग लिखते जाओ. ठीक है, मैं आपको नाम डिस्प्ले कर रही हूँ. You can see the spelling. So number 1, write down squamous epithelial tissue. You can see the screen. Squamous epithelial tissue. नंबर 2 पे लिखो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, या फिर एपिथेलियम भी बोल सकते हो या फिर एपिथेलियल टिश्यू भी बोल सकते हो. नंबर 2 राइट डाउन क्यूबॉइडल एपिथेलियम. मैम फर्स्ट वाला वापस दिखा. स्क्वैमोस एपिथेलियल टिश्यू. स्क्वैमोस. डन है. नंबर 2 क्यूबॉइडल एपिथेलियम या क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू. नंबर 3 कॉल्यूमनार एपिथेलियम. कॉल्यूमनार एपिथेलियम. यू कैन सी द हेडिंग्स. सिर्फ आप हेडिंग्स लिखते जाओ ताकि आपको समझ में आए कि स्क्वैमोस में कितने टाइप्स हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक में ऐसे अलग से सेपरेटली नहीं दिया है, तो जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए. नंबर 3 लिखा आपने कॉल्यूमनार एपिथेलियम. नंबर 4 राइट डाउन सीलिएटेड एपिथेलियम. सीलिएटेड एपिथेलियम. नंबर 5 ग्लैंडुलर एपिथेलियम. टीचर फोर्थ वाला ग्लैंडुलर. रिपीट कीजिए ना. अच्छा अच्छा, सीलिएटेड दिखा बेटा, स्क्रीन पे दिखा. सीलिएटेड एपिथेलियम पिंक कलर में दिया है, यस मिस. लिखा है. फिफ्थ ग्लैंडुलर एपिथेलियम. नंबर 6 सेंसरी एपिथेलियम. सेवेंथ वन जर्माइनल एपिथेलियम. ठीक है, ये सब Yes, किसके miss. टाइप्स आपने लिखे हैं? सिंपल के. ठीक है, अब जो कंपाउंड वाला आपने लिखा है उसके भी टाइप्स के नाम लिख लो आप लोग. कंपाउंड एपिथेलियम लिखा है ना, तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम. लिखो टाइप्स ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम. कंपाउंड मतलब लेयर वाला. टाइप्स ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम. उसमें नंबर 1 लिखो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम. सीधा स्पेलिंग रेड कलर से लिखा है. stratified epithelium. Next, transitional epithelium. Transitional.
Ma'am, can you go back for 1 second? ओके ये कंपाउंड के टाइप से, हाँ, कंपाउंड का फर्स्ट टाइप स्ट्रेटिफाइड, कंपाउंड का सेकेंड टाइप ट्रांजिशनल, लिख लिया बेटा? Yes, Yes, miss. miss. अच्छा, अब हम क्या करेंगे? वी विल अंडरस्टैंड द थिंग्स, ठीक है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल एपिथेलियम का पहला वाला स्क्वैमोज एपिथेलियम। अब देखो सभी कॉलेजेस में ना बेटा, सभी कॉलेजेस में स्क्वैमोज एपिथेलियल वाला जो क्वेश्चन है ना, ये सभी कॉलेज का मोस्टली फेवरेट क्वेश्चन होता है। किसी ना किसी फॉर्म में स्क्वैमोज को पूछ ही लेते हैं हर कॉलेज में मोस्टली, ठीक है? तो आप इसको समझ लो कि ये सबका लाडला क्वेश्चन है स्क्वैमोज एपिथेलियम। अच्छा, अब अगर इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है या कोई भी एपिथेलियम के बारे में पूछा है, चाहे फिर वो स्क्वैमोस के बारे में पूछा हो, चाहे वो कॉल्यूमनार के बारे में पूछा हो, चाहे वो ग्लैंडुलर के बारे में पूछा हो, कोई भी एपिथेलियम के बारे में अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है तो आपको 4 हेडिंग्स में आंसर लिखना है। क्या करना है? 4 हेडिंग्स में आंसर लिखना है। सो यू शुड लर्न नाउ। अभी आप 11th में आ गए हो बेटा, तो अभी आपको मेथड पता होना चाहिए कि आंसर कैसे लिखा जाता है एग्जाम में, ठीक है? नाउ यू हैव टू प्रिपेयर राइट फ्रॉम योर 11th स्टैंडर्ड टू फॉर योर 12th स्टैंडर्ड बोर्ड प्रिपरेशन, है ना? तो 12th के बोर्ड में भी कोई भी आंसर्स को, स्पेशली बायो में, हाँ, आपको पॉइंट वाइज या हेडिंग वाइज आंसर लिखना होता है। एंड बायो का खास बात क्या है कि डायग्राम इज मैंडेटरी, कंपल्सरी। हर क्वेश्चन में वो डायग्राम वाला अगर क्वेश्चन है तो आपको डायग्राम ड्रॉ करना कंपल्सरी है, भले उस क्वेश्चन में पूछा है या नहीं है, दैट इज इमटेरियल, ठीक है? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको बता रही हूँ कि समझो मैंने आपका एक एग्जाम लिया और मैंने आपको क्वेश्चन डाला, राइट डाउन और राइट अ नोट ऑन स्क्वैमोज एपिथेलियम। तो आप अपने आंसर को 4 हिस्सों में डिवाइड करोगे। सबसे पहले आंसर का आप ये स्क्वैमोज एपिथेलियम दिखता कैसे है, मींस उसका स्ट्रक्चर लिखोगे। फिर ऐसे स्क्वैमोज एपिथेलियम कहाँ पर प्रेजेंट है हमारे बॉडी में, मतलब उसका लोकेशन लिखोगे। फिर उसका फंक्शन क्या है हमारे बॉडी में, तो फंक्शन एक हेडिंग हो गया। और लास्ट हेडिंग विल बी डायग्राम, तो आपको छोटा सा एक डायग्राम ड्रॉ करना है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? So any epithelium, if it is asked in the exam, you have to nicely properly write down your answers in 4 headings. First of all, you will be writing the structure, then you will be writing the location, then you will be writing the function, and lastly you will be drawing a neat and clean labeled diagram. Understood all of you? Yes, miss. Okay, so let us first learn about the structure. अब स्ट्रक्चर जो यहाँ पे लिखा है, जब आप देखोगे तो आप खुद ही डिस्क्राइब कर पाओगे। तो समझो जो मैं कर्सर मूव कर रही हूँ, देखो नीचे वाले पे मैं कर्सर मूव कर रही हूँ, तो आपको ये दिख रहा है कि एपिथेलियम नजर आ रहा है। अब ये एपिथेलियम को आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो? इसको स्ट्रक्चर ही, अब ये समझो मैंने आपको नहीं एक्सप्लेन किया, तो आप इसका स्ट्रक्चर मुझे कैसे डिस्क्राइब करके बताओगे? ये सारे सेल है ना, देखो ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, तीसरा सेल है, चौथा सेल है, तो आप क्या बता सकते हो? देखो इसमें भी सेल्स इतने पास पास में प्रेजेंट है कि यहाँ पे इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स नहीं के बराबर है ना? है कि नहीं? डायग्राम Yes, से miss. दिख रहा है कि नहीं? यस। Yes. और आप इसको देख रहे हो तो आपको एक बार में ये सेल्स कैसे दिख रहे हैं? फुटपाथ के टाइल्स के जैसे दिख रहे हैं कि नहीं? जैसे फुटपाथ का टाइल्स होता है वैसे ही कुछ दिख रहा है कि नहीं? फुटपाथ के टाइल्स के जैसे भी दिख रहे हैं। इसीलिए इस स्क्वैमोज एपिथेलियम को पेवमेंट एपिथेलियम भी कहा जाता है। पेवमेंट का इंग्लिश में मतलब होता है फुटपाथ का टाइल्स।
ठीक है, तो क्योंकि ये स्क्वैमोस एपिथेलियम फुटपाथ के टाइल्स के जैसे नजर आ रहे हैं, इसीलिए हम इसे पेवमेंट एपिथेलियम कहते हैं। तो ये आपको एमसीक्यू के लिए पूछा जा सकता है एग्जाम में। स्क्वैमोस एपिथेलियम इज आल्सो कॉल्ड एज डैश, so answer should be it is also called as pavement epithelium. Next, what else you can understand by the diagram? The cells are resting on a basement membrane. Yes, so that is the peculiar point about the epithelial tissue. Next, what you can see, there is a single nucleus. Where is the nucleus present? No doubt it is present at the center of the cell. हर एक cell के center में present है. Understood all of you? तो देखो यही चीज यहाँ पे लिखा है. The cell of the tissues are flat, they are thin, they are polygonal. Yes, why polygonal? कोई एक शेप नहीं है, इसका शेप अलग है तो इसका शेप अलग है तो इसका शेप अलग है, तो हर सेल का शेप अलग अलग है. Therefore they are polygonal in shape with serrated margin. Now what do you mean by the word serrated margin? आपने कभी कारपेंटर का सॉ देखा है? सॉ मतलब जो उसकी आरी होती है जिससे वो अपने लकड़ी को काटता है, देखा है कभी? कैसे होते हैं? जिगजैग लाइंस होते हैं ना, जिगजैग होता है कि नहीं? देखा है Yes, कभी ma'am. किसी ने कारपेंटर के सॉ को, Yes, जिसको ma'am. आरी बोला जाता है? तो आप इसके मार्जिन को देखो बेटा, इसके मार्जिन को देखो, स्मूथ मार्जिन है क्या? कैसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे मार्जिन दिख रहा है कि नहीं? देखो इधर भी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे दिख रहा है, दिख रहा है? यस और नो? तो Yes, ma'am. तो इसके लिए हम बोल रहे हैं विथ सरेटेड. सरेटेड का मतलब होता है जिगजैग. ठीक है, बायो में सरेटेड का मतलब होता है जिगजैग मार्जिन. ठीक है, तो स्मूथ मार्जिन नहीं होता है स्क्वैमोस एपिथेलियम का, जिगजैग होता है, सरेटेड मार्जिन होता है. एक दूसरे के साथ ऐसे फिट है जैसे कि टाइल्स और फुटपाथ, और इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? पेवमेंट एपिथेलियम कहते हैं. न्यूक्लियस कैसा है? ओवल शेप का है या कभी कभी गोल भी हो सकता है. तो गोल को हम क्या बोलते हैं बायो में? स्फेरिकल. स्फेरिकल मतलब राउंड. या तो अंडे के आकार का हो सकता है, ओवल शेप का हो सकता है, पर कोई भी शेप का हो सकता है, पर हमेशा सेंटर ऑफ द सेल में होता है. ठीक है, तो ये हमने बता दिया इसका स्ट्रक्चर. अब आप इसका लोकेशन बताओगे. तो ऐसे टाइप का एपिथेलियम हमारे बॉडी में कहाँ प्रेजेंट है? हमारे ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है. व्हाट आर ब्लड वेसल्स? दे आर आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. ठीक है, दे आर कॉल्ड एज अ ब्लड वेसल्स. हमारे एल्वियोलाई में प्रेजेंट है. व्हाट इज एल्वियोलाई? Alveoli are the balloon-like structures which are present in our lungs. हमारे lungs में होता है. ठीक है, देन सीलोम. सीलोम का मतलब क्या होता है? बॉडी कैविटी. बॉडी कैविटी में भी ऐसे टाइप का एपिथेलियम प्रेजेंट है. अच्छा, ये एपिथेलियम का काम क्या है? तो बहुत सारा काम है. प्रोटेक्शन करना, एब्जॉर्प्शन करवाना, ट्रांसपोर्ट करवाना, फिल्ट्रेशन करवाना, सिक्रीशन. क्यों? क्यों? क्योंकि ये थिन है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. स्क्वैमोस एपिथेलियम काफी थिन होता है, बहुत ही पतला होता है, और पतला होने के कारण वो अब्जॉर्प्शन करा सकता है, ट्रांसपोर्ट करा सकता है, फिल्ट्रेशन करा सकता है, सिक्रीशन करा सकता है. ऑल दिस थिंग्स कैन बी डन इजिली एंड नाइसली. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? सो ये जो ऊपर के 3 पॉइंट्स है, ये हो गया उसका स्ट्रक्चर, ये हो गया इसका लोकेशन, ये हो गया उसके फंक्शंस. ठीक है, सो ऐसे आपको पढ़ना है और एक सुंदर सा डायग्राम ड्रॉ करना है. बस, योर आंसर इज फिनिश्ड. Just go through all the points. कुछ नहीं समझा है तो you can ask me, otherwise we will move on to the cuboidal one. Understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो अब हम क्यूबॉइडल पढ़ेंगे. क्यूबॉइडल बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है. सिर्फ 2 लाइन में इसका स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा. देखो कैसा बताना है. क्यों इसको क्यूबॉइडल बोलते हैं? क्योंकि क्यूब के जैसा है. आप देख सकते हो इसका डायग्राम. आपको 3D डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, आप 2D डायग्राम भी बना सकते हो. देखो सिर्फ ये वाला पार्ट भी बना सकते हो. हाँ, आपको 3D डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है. सो ये इसको हम क्यूबॉइडल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका सेल जो है वो क्यूब के जैसा है, क्यूबॉइडल इन शेप है ना? सबको दिख रहा है कि नहीं क्यूब के जैसा शेप?
अच्छा, न्यूक्लियस किधर है? बीच में है। कैसा है? गोल गोल है, तो स्फेरिकल न्यूक्लियस प्रेजेंट एट द सेंटर। तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब आपको इसका फंक्शन पढ़ना है। क्या काम करता है ये? एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। ऐसे टाइप का एपिथेलियम हमारे बॉडी में कहाँ पर प्रेजेंट है? तो हमारे पैनक्रिया में प्रेजेंट है, हमारे सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट है, हमारे नेफ्रॉन में प्रेजेंट है। नेफ्रॉन किधर होता है बेटा? किसी को पता है नेफ्रॉन क्या होता है? किडनीज में। वेरी गुड, शाबाश बेटा, यस। हमारे किडनी के अंदर जो यूरिन फॉर्मेशन करता है, तो वो कौन करता है? नेफ्रॉन ही करता है। नेफ्रॉन आर कॉल्ड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। और नेफ्रॉन के बारे में अभी 11th स्टैंडर्ड में ही आप एक्सक्रीशन लेसन पढ़ने वाले हो, जिसमें आप नेफ्रॉन के बारे में डिटेल में पढ़ोगे। और उस वक्त आपको पता चलेगा कि नेफ्रॉन के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये सारी चीजें नेफ्रॉन के पार्ट है, नेफ्रॉन का ही पार्ट है। हाँ, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को हम शॉर्ट फॉर्म में पीसीटी भी बोलते हैं, और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को हम डीसीटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन सारे जगहों पर क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट है। सो जस्ट गो थ्रू। तो हो गया आपका स्ट्रक्चर, हो गया आपका लोकेशन, फंक्शन, और एक सिंपल सा 2D वाला डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम में आपको क्या लेबल करना है? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और बेसमेंट मेम्ब्रेन तो जरूर से करना है, क्योंकि ये एक एपिथेलियम है इसीलिए। अंडरस्टूड दिस मच? शैल वी मूव फॉरवर्ड? यस मिस। Yes, miss. Yes. Yes, miss. चलो, अब हम नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं, कॉल्यूमनार। तो बच्चों समझो कि कॉलम का मतलब होता है कोई चीज टॉल, लंबा, पिलर के जैसा। तो आप देख सकते हो इस डायग्राम को, देखो मैं कर्सर मूव कर रही हूँ, आप देख सकते हो सेल्स कैसे हैं? लंबे लंबे हैं, टॉल टॉल सेल्स है ना? अभी तक कैसे था? ऐसा बॉक्स बॉक्स जैसा था, क्यूब के जैसा, पर यहाँ पे देखो लंबे लंबे सेल्स है ना? क्योंकि ये लंबे सेल्स है इसीलिए हम इसे कॉल्यूमनार कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब लंबा होने की वजह से क्या हो गया? जो नीचे का हिस्सा है वो तो बड़ा नैरो है, पर जो ऊपर वाला हिस्सा है वो ब्रॉड है। ठीक है, तो जो हिस्सा बेसमेंट मेम्ब्रेन को टच है वो नैरो है, और ऊपर वाला हिस्सा ब्रॉड है। ठीक है, अब ये ब्रॉड वाले हिस्से में क्या प्रेजेंट है? तो इस ब्रॉड वाले हिस्से में फिंगर के जैसा छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, जिसे हम कहते हैं माइक्रोविलाई। आप देख सकते हो ऐसे फिंगर के जैसा स्ट्रक्चर्स, लेबलिंग देख सकते हो, माइक्रोविलाई। ठीक है, तो विलाय का मतलब बायो में होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। तो क्योंकि ये सेल के अंदर विलाय है इसीलिए हम इसे कह रहे हैं माइक्रोविलाय। ठीक है, न्यूक्लियस कैसा है? ओवल है, पर न्यूक्लियस बीच में है क्या? नहीं, न्यूक्लियस बेस की तरफ है, नीचे की तरफ है, लोअर हाफ ऑफ द सेल की तरफ है। अंडरस्टूड द स्ट्रक्चर ऑल ऑफ यू? कॉल्यूमनार का, कॉल्यूमनार में क्या बोलोगे? सेल्स टॉल है, पिलर के जैसे है, इसका नैरो एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन पे है, और इसका फ्री एंड फ्लैट है और ब्रॉड है। इसके फ्री सरफेस पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, जिसे हम माइक्रोविलाई कहते हैं। न्यूक्लियस ओवल शेप का है और बेस की तरफ प्रेजेंट है, या फिर लोअर हाफ रीजन में प्रेजेंट है। ऐसे टाइप के एपिथेलियम कहाँ पर प्रेजेंट हैं? तो जहां पे भी माइक्रोविलाय होता है बेटा, प्लीज डू अंडरस्टैंड, जहां पे भी माइक्रोविलाय होता है, इट ऑलवेज इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। क्योंकि फिंगर के जैसा स्ट्रक्चर है ना, तो सरफेस एरिया ज्यादा है। तो सरफेस एरिया कहाँ पे ज्यादा होना चाहिए? हमारे स्टमक में, हमारे इंटेस्टाइन में, यस, हमारे गॉल ब्लैडर में, ये सारी जगहों पे सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा फूड का या कोई चीज का एब्जॉर्प्शन हो सके। इसीलिए कॉल्यूमनार टाइप का एपिथेलियम हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे गॉल ब्लैडर में है, हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड मतलब स्टमक के ग्लैंड में है, हमारे इंटेस्टिनल ग्लैंड्स में प्रेजेंट है।
इसका फंक्शन क्या है? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन. अंडरस्टूड? Just go through the points. Any point if you have not understood, I will explain you once again. Done? Understood all of you? Yeah. Yes, ma'am. This is the actual diagram under the microscope. आप यहाँ पे देखो, ऊपर देख सकते हो, छोटे 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 माइक्रोविलाई देख सकते हो. देखो लंबे लंबे सेल्स है, न्यूक्लियस देखो बेस की तरफ है. तो दिस इज द एक्चुअल डायग्राम अंडर द माइक्रोस्कोप. अब अगर आपको ये समझ में आ गया तो सीलिएटेड एपिथेलियम तो और अच्छे समझ में आ जाएगा. देखो डायग्राम देख के मुझे बताओ, यहाँ पे भी सेल्स कैसे हैं? सेम वही वाला पॉइंट है, सिर्फ फर्क किधर है? ये ऊपर वाले स्ट्रक्चर में फर्क है, बाकी सब सेम लिखना है आपको. यहाँ पे भी आप क्या बोलोगे? सेल टॉल है, पिलर के जैसा है कि नहीं? फिर आप वापस वही बोलोगे, जो इसका नीचे वाला हिस्सा है नैरो है, बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ है, जो ऊपर वाला सरफेस है वो ब्रॉड है. पर इस ऊपर वाले फ्री एंड पे क्या प्रेजेंट है? सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है. सीलिया का मतलब होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, स्मॉल स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसे हम बायो में सीलिया कहते हैं. तो क्योंकि इसके फ्री एंड पे सीलिया प्रेजेंट है, इसके लिए इसका नाम सीलिएटेड एपिथेलियम है. बाकी का सब सेम है, न्यूक्लियस बेस में है, ओवल है, बाकी सब सेम है. देखो अभी ये सारा पॉइंट, स्ट्रक्चर देखो, सिर्फ फंक्शन में आपको एक्सप्लेन करती हूँ. पहले सिर्फ स्ट्रक्चर वाले पॉइंट्स देख लो, ऑल द 4 पॉइंट्स. देखो बेटा, ऑल द 4 पॉइंट्स. Okay, now let us learn कि कहाँ पर present है ऐसे type का epithelium. So these type of epitheliums are found in the buccal cavity of frog. Buccal cavity मतलब mouth cavity होता है. Nasal cavity मतलब अपने जो nose का cavity है वहां पर. Trachea में present है. Trachea is the windpipe. Oviduct, ओविडक्ट आपने आपके लोअर क्लासेस में 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें आपने फैलोपियन ट्यूब पढ़ा होगा. फैलोपियन ट्यूब को ही ओविडक्ट कहा जाता है. तो आप फंक्शन में देख सकते हो कि देखो, जब हम एयर इनहेल करते हैं तो सिर्फ एयर ही, गैसेस ही अंदर नहीं जाते हैं, उसके साथ डस्ट पार्टिकल भी अंदर जाते हैं. तो डस्ट पार्टिकल लंग्स तक नहीं पहुंचना चाहिए, उसके लिए ये सीलिएटेड एपिथेलियम सारे डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करके रखते हैं. क्योंकि सीलिया में हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, तो जब हम इनहेल करेंगे, एयर को इनहेल करेंगे, तो जो भी गैस, जो भी डस्ट पार्टिकल है, इस ट्रेकिया में सीलिएटेड एपिथेलियम होने की वजह से सारे डस्ट वहीं पे ट्रैप हो जाएंगे और हमारे लंग्स तक नहीं पहुंच पाएंगे. तो दिस इज नंबर 1 फंक्शन. नंबर 2, ऐसे टाइप का एपिथेलियम फीमेल के ओविडक्ट में या फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट है. अब आपने पढ़ा है कि जो फीमेल एग होता है, एग वो नॉन मोटाइल होता है. नॉन मोटाइल का मतलब है उसके पास कोई भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स नहीं है. हाँ, पर जबकि जो स्पर्म होता है उसके पास टेल होता है, वो टेल को हिला के आगे बढ़ सकता है. ठीक है. तो जब भी ओवरी में से एग रिलीज होता है तो उसको कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है इन द फैलोपियन ट्यूब. तो क्योंकि अब उसके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि जिससे कि वो चलकर आगे जा सके, तो उस दौरान ये सीलिएटेड एपिथेलियम इस एग को पुश करते हैं इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? अंडरस्टूड?
So ciliated Yes, epithelium Yes. helps in pushing the ovum. Ovum matlab egg through the oviduct. Okay. So go through the function and location, and then you can draw this diagram showing the cilia above it. So this is the actual diagram of a ciliated epithelium. You can see a hair-like structures, how nicely and clearly it is visible. Okay. So now, next we are going to learn about the glandular epithelium. See, childrens, wherever the word gland comes, you should always understand that it is going to secrete something. ग्लैंड का मतलब ही होता है कि वो कुछ ना कुछ सिक्रीट करने वाला है. जैसे आपने बहुत सारे ग्लैंड्स पढ़े होंगे. स्वेट ग्लैंड जो स्वेट बनाता है, टीयर ग्लैंड जो टीयर्स बनाता है, ऑयल ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा बनाता है. तो जहां कहीं पे भी ग्लैंड वर्ड होता है ना, उसका मतलब वो कुछ ना कुछ सिक्रीट करता है. ठीक है. तो जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है ना, उसका शेप कोई भी हो सकता है. वो क्यूब शेप का भी हो सकता है, वो लंबे लंबे टॉल कॉलमनार जैसा भी हो सकता है, वो पिरामिड के भी शेप का हो सकता है. तो उसका शेप यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका काम इम्पोर्टेंट है कि वो क्या सिक्रेट करता है और कैसे सिक्रेट करता है. ठीक है. सो यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम का, वो काफी बड़ा होता है और बेस की तरफ होता है. इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द बेस. Secretory granules are present in the cytoplasm. क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि वो कुछ ना कुछ सिक्रीट करता है, तो उसमें सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स तो होंगे ही उसके साइटोप्लाज्म में. अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ग्लैंड डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सेल. अगर एक ही सेल कुछ बनाता है, कुछ सिक्रीट करता है, तो उसे हम कहेंगे यूनिसेल्यूलर. और अगर ग्रुप ऑफ सेल्स कुछ बना रहे हैं, कुछ सिक्रीट कर रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे मल्टी सेल्यूलर. ठीक है. यूनिसेल्यूलर जो भी चीज होता है बेटा, ये याद रखो प्लीज, अपने दिमाग में इसको भी अच्छे से फिट कर लो. व्हाट आई एम सेइंग नाउ, यूनिसेल्यूलर जो सेल्स होते हैं उसको हम लोग गॉबलेट सेल्स भी कहते हैं. क्या कहते हैं? अगेन अ फेवरेट क्वेश्चन ऑफ ऑल द कॉलेजेस. Unicellular cells are called as dash cells. They are called as the goblet cells. What they are called as? What they are called as? Goblet cells. Goblet cells. Goblet cells. And again, fit in your mind that all goblet cells, कोई भी goblet cells एक ही चीज सिक्रेट करता है. क्या सिक्रेट करता है? म्यूकस. क्या सिक्रेट करता है? म्यूकस. सो अगर मैंने आपको बताया कि ये जगह गॉबलेट सेल्स है, तो आपको क्या इमेजिन करना है कि वहां पे म्यूकस बनता है. समझो मैंने बताया कि हमारे बक्कल कैविटी में गॉबलेट सेल्स है, तो आप क्या इमेजिन करोगे? अच्छा यहाँ पे म्यूकस बनता है. मैंने आपको बताया चलो यूरिनरी सिस्टम में गॉबलेट सेल्स है, तो आपको क्या इमेजिन करना है? अच्छा यहाँ पे म्यूकस बनता है. म्यूकस का मतलब क्या होता है बेटा? स्टिकी सब्सटेंस. जब आपको सर्दी वगैरह ज्यादा होता है तो वो ज्यादा म्यूकस बाहर आता है ना. समझ में आया आपको म्यूकस क्या होता है? स्टिकी सब्सटेंस. Okay. Now, depending upon the mode of secretion, again there are two types of glands: exocrine gland and endocrine gland. Exocrine and endocrine. Exocrine gland क्या होता है? जो लोग अपना secretion, जो glands अपना secretion कोई डक्ट में डालते हैं. डक्ट मतलब कोई पाउच में डालते हैं या एक लिमिटेड जगह पे उसको सिक्रेट करते हैं, उसे हम कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड. जैसे कि टीयर ग्लैंड हमारे आंखों के पास है, स्वेट ग्लैंड हमारे स्किन में है, सलाइवरी ग्लैंड हमारे बक्कल कैविटी में है. मतलब उसका एक जगह फिक्स है ना बेटा, और वो वहीं पे चीज सिक्रेट करता है ना. समझ में आ गया? तो उससे हम कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड. फिर एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब जो लोग अपना सिक्रीशन कोई डक्ट या पाउच में नहीं डालते, उनके पास डक्ट होता ही नहीं है, इसलिए एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है. डक्टलेस ग्लैंड.
फिर वो लोग सिक्रीशन डालते कहाँ जब उनके पास डक्ट ही नहीं है, पाउच ही नहीं है तो एंडोक्राइन ग्लैंड अपना सिक्रीशन हमेशा ब्लड में डालते हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है उसे हम हॉर्मोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉर्मोन्स। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? यस मिस, यस मिस। ठीक है, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, exocrine gland and the endocrine gland. Exocrine gland are the gland with duct and they are secreting their secretion at a particular place. ठीक है, like the tear gland, sweat gland, oil gland. ठीक है, there are many, salivary gland, many glands are like that. Gastric gland जो stomach में secretion करता है. पर endocrine glands are those glands which are without duct, and therefore they are called as ductless gland. Their secretions are commonly called as hormones, and the hormones are secreted directly into the bloodstream. When you go to your 12th standard, you will be learning in more detail about this endocrine glands. Understood? So you can see the shape can be anything. You can see the structure, the diagram. ये एक सेल मॉडिफाई हुआ है, देखो ये एक सेल है ना, कितने सेल्स है यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 सेल्स में से ये जो सेकंड लास्ट सेल है वही मॉडिफाई हुआ है टू सिक्रीट समथिंग। तो इस सेल को हम क्या नाम देंगे? गॉबलेट सेल। और गॉबलेट सेल बोला तो क्या सिक्रीट करेगा? म्यूकस। अंडरस्टूड? यस। आपको साथ में माइक्रोविलाई भी दिख रहा है, मतलब कि कॉल्यूमनार के साथ भी हो सकता है। Again you can see the diagram in another form. ये देखो ciliated epithelium है, यहाँ पे भी एक सिंगल सेल है गॉबलेट, ये सब क्या दिख रहा है? गोल गोल म्यूकस। सो एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जांपल्स आप देख सकते हो, सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपको 12th में पूरा डिटेल में पढ़ना है, बट यू कैन नो देयर आर मेनी ग्लैंड्स। थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, हाँ बहुत सारे ग्लैंड्स हैं। ठीक है, और इसके ग्लैंड्स का सिक्रीशन को मोस्टली हम लोग हॉर्मोन्स कहते हैं। तो क्या काम है इसका? म्यूकस का क्या काम होता है? टू ट्रैप द डस्ट पार्टिकल, और साथ में लुब्रिकेशन का काम करना है। लुब्रिकेशन मीन सॉफ्टनिंग या स्मूथनिंग का काम करना। तो ऐसे गॉबलेट सेल्स तो हमारे हर एक सिस्टम में प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हर जगह प्रेजेंट है। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है उनका सिक्रीशन मोस्टली एंजाइम्स होता है, और एंडोक्राइन का सिक्रीशन मोस्टली हार्मोन्स होता है। अंडरस्टूड? यस मिस। So I hope all of you have understood till here. ठीक है, तो आप लोगों को होमवर्क क्या है बच्चा? मैंने आपको आज ग्लैंडुलर एपिथेलियम तक एक्सप्लेन किया है। आप कोशिश करना कि आप अपने टेक्स्ट बुक से देखकर ये 4 हेडिंग्स में आंसर लिखना विद डायग्राम। Will you all do it? Yes, Will you all ma'am. do it? Yes, and you all will show me in the next class. ठीक है? यस मिस। Yes, ma'am. Okay. Yes, miss. चलो देन ठीक है, फिर we will stop now. I think so time has been done because we will be having your other lectures also. So we will stop now over here. Tomorrow again we will meet and learn the